آنسو لے سکے، اور حسین پر سرا سلام بھیجنے لگا، حسین مصیبتوں کے دلدل میں بھی تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یزید ہاتھ مل کے رہ گیا، یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، اور حسین مصیبتیں جھیل کر مقصد میں کامیاب۔ سبحان اللہ۔ وہاں دنیا اور آخرت کی جنگ تھی، دنیا ذلیل ہو گئی، آخرت جیت گئی۔ حرام و حلال کی جنگ تھی، حرام پست ہو گیا، حلال جیت گیا۔ نظریاتی جنگ تھی، یزید کا نظریہ غلط تھا، وہ پامال ہو گیا۔ حسین کا نظریہ ایسا صحیح نکلا کہ آج 1300 سال کے بعد کئی کروڑ لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ حسین لکھے ہوئے ہیں، غلام حسین، احمد حسین، محمد حسین۔ تو ظلم مٹ گیا، صبر زندہ ہے، یزید مٹ گیا، حسین زندہ ہے، اتیاچار مٹ گیا، مگر حسین کا گڈ ویوہار زندہ ہے۔ یزید کی قبر کہیں نہیں ملتی، حسین کی قبر زندہ ہے، کروڑوں کی حاضری زندہ ہے۔ جمعہ کے خطبے میں حسین نماز کے اندر صلی علی محمد و علی آل محمد میں نماز میں حسین کا درود و سلام، جمعہ کے خطبے میں حسین، مجلسوں کا نام شہید اعظم کو حسین، یعنی ظلم مٹ گیا اور صبر زندہ ہے، اور یزید مٹ گیا، حسین شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کا کام ہوتا ہے جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے، جب ہم تماشا ہونے لگتے ہیں، نام حسین کا آتا ہے، جوانی کی کلبلہٹ پیدا ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادگار امام حسین، فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، فیضان حضور عالی، فیضان بابو حضور، خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی شہر قادری صاحب کی باتیں تو بہت طویل ہو گئی، 1.5 گھنٹے کی تمہیدی گفتگو ہوئی، تقریر شروع ہوئی، تقریر اعلیٰ حضرت پہ تقریر، وہ تو 2 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، ابھی اور 2 گھنٹہ سننا ہے نا؟ ایک دم نہیں سنیے گا، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، نیند آ رہی ہے آپ کو بابا؟ نہیں آ رہی ہے؟ پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بابا کی کہانی تو چھوٹ گئی۔ لا الہ الا اللہ کہتے تھے بابا نظامی، اپنے ہاتھ سے کھیتی کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے دھان گیہوں ملا کے کھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے؟ خدمت خلق بھی کرتے تھے، دوسروں سے نوچتے نہیں تھے، عصر سے مغرب کے بیچ میں اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر میں جا کر کے ڈھونڈ کر کے کہاں کون حاجت مند ہے، کہاں کون غریب ہے، دوائی نہیں دوائی کا نام لکھ کے دیتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے۔ آج امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ The best man is one who is profitable for others۔ اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو لابھ پہنچائے، اور ہمارے نزدیک اچھا آدمی ہے جو دوسروں کو نوچ لے، سسر کو نوچ لے، سالہ کو نوچ لے، پڑوسی کو نوچ لے، سب کو نوچنے والا آدمی، اور نوچ کر کے مسکرائے اور پھولا گوشت کھائے۔ نوچنے والا خوش نہ رہے، خود نوچا جائے گا۔ آدمی وہی ہے جو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھائے، جو دوسروں کو مسکرا کے بات کرے، دوسروں کا غم دور کر دوسروں کے کام آ جائے۔ امریکہ کے لوگ آج کہتے ہیں آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، ہاتھ سے فائدہ، زبان سے فائدہ، آنکھ سے فائدہ، زبان سے اچھی بولی بول کے دوسروں کا غم دور کر دے، ہاتھ پھیلا کے ہاتھ سے دوسروں کی مدد کر کے اس کے کام آ جائے۔ The best among you is one who is profitable for others۔ اسی تو میں کہتا ہوں آقا دو علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایسی شاندار بات کہہ دی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس۔ اس حدیث پاک کو اپنی دیوار میں، اپنے گھر کے ٹیبل پہ اور سب کے سینے میں یہ حدیث موجود رہنی چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی the best among you is one who is profitable for others۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا۔ امریکہ کے ہزاروں دانشور کی ساری باتیں ایک طرف، خدمت خلق کے تعلق سے مصطفیٰ کی یہ حدیث ایک طرف، اس کا وزن اتنا بڑا ہوگا انہیں کہنا پڑے گا کہ he was the only man in history۔ آئے تو بڑے بڑے فتویٰ، آئے تو بڑے بڑے رائٹر، آئے تو بڑے بڑے اسکالر، مگر مصطفیٰ کا جواب بن کے کوئی نہیں آیا۔ یہی جملہ بریلی سے امام احمد رضا خان کہہ اٹھے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھ
समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, मुस्तफा से ऊंचा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। मुस्तफा से प्यार कीजिए, उनकी हदीस को अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए, अपने घर की माँ बेटी को सरकार हदीस की तालीम दीजिए, अपने बेटों को मफाद परस्त खुद गर्ज नहीं बनाइए, उन्हें बोलिए कि नबी कौनैन ने कहा कि अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। अपने बच्चों के हाथ में पैसा कौड़ी दे के गरीबों को दिलवाइए, अपने बच्चों के हाथ में तोहफा दे के पोज भिजवाइए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उसकी खूब निगरानी कीजिए, इसलिए कि बच्चा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब आप उसकी निगरानी करेंगे तो आगे चल के वही बच्चे आपकी कब्र पे खड़े होकर आपकी बख्शिश की दुआ करेंगे और इलाही मेरे माँ बाप को बख्श दे जिन्होंने मुझको जमीन और मकान को नहीं दिया, अलबत्ता मुस्तफा का अखलाक सिखा गया है, हुजूर की हदीस की तालीम दे दी है। मदरसे के बच्चे को बुला करके कुरान खानी करवा देना ये भी अच्छा काम है, मगर ये उतना अच्छा काम नहीं है जितना अच्छा काम अपना कुरान पढ़ करके बाप को बख्श दे रहा है। मेरा बच्चा मर जाए और हम किसी दूसरे को किराए पे ले आए और औरत को बोले तुम रो मेरे बेटे के मरने के बाद, बच्चा की माँ जो रोएगी उसके रोने में और जो औरत किराए पे आके रोएगी उसके रोने में जितना बापा फर्क होगा, उसी तरह मदरसे के बच्चों के कुरान पढ़ने में और अपने कुरान पढ़ने में फर्क होगा। मदरसा का बच्चा बिरयानी खाने आएगा, 4 पैसा ले, छोटा छोटा बच्चा क्या हो शऊर है, हम आज बोलते हैं कि आओ यहाँ 5 खत्म कर दो जल्दी से, और बच्चा बोलता हाँ 6 खत्म कर देंगे, उधर वो गया घर से घूम गया बोला खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। यानी तुम चला तो बच्चा मदरसे का तुमसे महा चाला। कैसे तुमने बोल दिया कि 3 खत्म कर दो, 10 बच्चा है और 10 बच्चा कैसे खत्म करेगा 1 घंटे में 3 खत्म कुरान। ये बोलना चाहिए कि आप मुस्तफा के मेहमान हैं, मेरे घर में आ गए हैं, आपके कदम की बरकत से अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे, आप आ गए 2 लुकमा खा लें, दुआ कर दें और जितना कुरान हो सके अच्छा से पढ़ दें। यही बहुत बड़ी बात। ये कैद लगा देना 3 खत्म 4 खत्म 10 खत्म कर दीजिए ताकि नाम हो जाए 10 खत्म हो गया, ये कैद ना लगाएं, ये वो उसी तरह से पढ़ेगा जिस तरह से मैंने बताया आपको। लेकिन जिसका अपना बाप मर गया, अपनी माँ मर गई, वो जो रात के सन्नाटे में माँ की कब्र पे जाके दुआ करेगा, 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ देगा और कहेगा इलाही मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। उस दुआ में जो आंख से आंसू कतरे निकलेंगे, उस दुआ में जो दर्द शामिल होगा, बेदिली के साथ करोड़ों हाथ की दुआ एक तरफ, आंसुओं के साए में औलाद की दुआ एक तरफ। इसलिए अपने घर में वो माहौल पैदा कीजिए, अपने बाल बच्चों को दिन भर बड़ी एक मजबूत, जमीन पे जमीन, मकान पे मकान, दुकान पे दुकान, गाड़ी पे गाड़ी, बुलेट भट भट। आजकल बुलेट का रिवाज चल पड़ा, भट भटिया गाड़ी पे चल रहा है। आजकल कोई ग्लैमर पूरा नहीं गाड़ी, बुलेट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की। यहाँ जब रास्ते से गुजरे तो लोग बोले कि साफ बड़ा आदमी गुजर रहा है और 2.5-3 लाख की बुलेट फट फट। यानी सिर्फ गाड़ी का मुकाबला, कार का मुकाबला, कार खरीद लें, जल्दी से खरीद लें, दरवाजे पे रख दें ताकि लोग कोई कार वाला हो गया, जबकि आजकल कार सब चमार दलील ये वो सब खरीद रहा है। तो कार से बड़ा मत बनिए, मकान बना के बड़ाई का तस्वीर मत देखिए, बल्कि जब देखें कोई कार खरीद रहा है समझ लें छोटा सा जलील सी दुनिया कमा रहा है, कोई मकान बना रहा है समझ लें जलील सी दुनिया कमा रहा है, कोई 2 4 10 50 बीघा जमीन खरीदा समझ लें कि वो मुर्दार बकरी को खरीदा है। लेकिन कोई नमाज पढ़ा तो समझ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा काम यही कर रहा है। क्योंकि जिंदगी की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत, और जो अल्लाह की इबादत करे उससे बड़ा कोई काम नहीं। तो नमाज से बढ़कर कोई काम, रोजे से बढ़कर कोई काम नहीं, हज ज़कात से बढ़कर कोई काम नहीं। इबादत यहाँ करें जन्नत वहां मिलेगी, सुकून अल्लाह यहाँ अता करेगा, फरमा पड़ता औलाद अल्लाह देगा, नेक बख्त औलाद अल्लाह देगा, अच्छी बीवी अल्लाह अता करेगा, अच्छा पड़ोसी अता करेगा, और मुसीबतें आई तो अल्लाह सब्र अता करेगा। बात दर्जे अल्लाह का मखसूस होते हैं, जिन दर्जों पे आदमी सजदों की बदौलत नहीं पहुंच पाता तो अल्लाह उसे मुसीबत की भट्टी में दबाता है, फिर उसे सब्र की तौफीक देता है और फिर अल्लाह वो मकाम अता कर देता है। सरकार आला हजरत ने जो काम किया है वो काम गालियां सुनकर, उन्होंने जो लाल ताल के अल्फाज और जुमले सुनकर जो शरीयत का चेहरा चमकाया है, जो शरीयत का काम किया है, जो हराम को हलाल, हलाल को हराम, को हराम, हलाल को हलाल कहा, दूध का दूध, पानी का पानी, शरीयत का कानून बताया है। वह लोग जो बंद कमरे में 1000 का नमाज पढ़े वो अपना फायदा करते हैं, तो एक फतवा लिख कर करोड़ों का ईमान बचा जाए, जो करोड़ों के आमान की हिफाजत करे वह करोड़ों का ईमान बचाने वाला, करोड़ों का आमान बचाने वाला, करोड़ों को कंफ्यूजन से
बचाने वाला, करोड़ों सजना एक तरफ, जो करोड़ों का ईमान बचाए उसका ये कैरेक्टर एक तरफ। आज अमेरिका में रजा रहा, हॉलैंड में रजा रहा, बांग्लादेश में रजा, पाकिस्तान में रजा रहा, हिंदुस्तान में गली कूचे में रजा रहा। रजा का सलाम मुस्तफा जान रहमत अमेरिका की मस्जिदों में, मुस्तफा जान रहमत हिंदुस्तान की अक्सर मस्जिदों में, पाकिस्तान बांग्लादेश की मस्जिदों में, यानी एक बरेली का वो खान में सलाम लिखा था। मदीना से लेके बगदाद तक, अमेरिका से लेके मलेशिया तक, दुनिया के अलग अलग देशों में उस सलाम की आवाज गूंजती है। दिल्ली में खड़े हो जाए, सुबह सवेरे कई मस्जिदों से आवाज आती है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। बम्बई में खड़े हो जाए सुबह हाजी अली के किनारे, बम्बई से आवाज आती है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। वो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी है। सलाम लिखा, आलमगीर हो गया। फतवा रज़विया लिखा, आलमगीर हो गया। आज साहब पूरे मुख्तार की शरह लिखी, फतवा शामी की शरह, आलमगीर हो गई वो किताब। आला हज़रत का हदायत के बख्शिश वो दीवान आलमगीर हो गया। उनका मिशन, उनका पैगाम आलमगीर हो गया। इसलिए कि वह मुखलिस होकर जो दीन के दुश्मनों का ताक़ुब और पीछा किया, अपने लोगों को ईमान को जो सेफ्टी दी है, अल्लाह ने वो इनाम दिया। ए रज़ा तुम बरेली में बैठकर मुस्तफा की मोहब्बत का जाम करोड़ों को पिलाया है, तुमने कुफ्र और शिर्क से बचाया है, तुमने बदअक़ीदगी की जड़ें काट दी है, मुस्तफा के दीन का काम किया है, शरीयत में आने वाली धूल को हटाकर उसका चेहरा चमकाया है। तुमने गालियां सुनकर, तुमने मुसीबतें उठाकर, तुमने पुराने घर में रहकर अपना घर अच्छा नहीं बनाया, जमीन में इजाफा नहीं किया, लोगों को पहले से जमा नहीं किया, उसी बंद कमरे में रहकर वो किताब लिखी, वो किताब शौक़ से घर तक फैल गई। फतवा लिखा, चार तंग आलम में पहला। आज 108 साल हो गए जब जब रज़ा का फतवा पढ़ा जाता है, लोग ही कहते हैं इलाही रज़ा की कब्र पे हज़ारों नूर हो, जिन्होंने हमारे ईमान को बचाया है, हमारे आमान को बचाया है। हिंदुस्तान के ढेर सारी दुनिया के मुसलमान कहने लगे कि इस तरह चर्चा दुनिया में अल्लाह ने जो रज़ा को दिया है, मक़बूलियत दी है, ऐसा लगता है काबिल रज़ा की वो है इमाम रज़ा का है, जिस दिन को देखिए वो सुभान अल्लाह। ये मक़बूलियत अल्लाह ने इसलिए दी जो दीन का काम करेगा वो गुमनाम नहीं है। ए मैन हू डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। एक एग्जांपल के तौर पर आज की तारीख में, आज से 25 से 50 साल पहले लोग 12 वफात कहते थे। 12 वफात, हम लोग भी बचपन जब पढ़ते थे 35 साल पहले, वहाँ मौलवी साहब कहते थे कि 12 वफात आ जाए, 12 वफात की फातिहा है। आज भी मदरसा बोर्ड से जो छुट्टी का कैलेंडर छपता है उसमें भी फातिहा दवाज़दहों यानी 12वीं की फातिहा लिखा हुआ। लेकिन आज की तारीख में कैसा माहौल बना पिछले 25 साल के बाद। आज बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है, कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज साहब मदरसे बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज जिस गली से गुजर जाए, आप ट्रेन से सफर करें, प्लेन से सफर करें, जब प्लेन नीचे लैंड करता है वहां से देखें कि आप घरों की छतों पे वो झंडा लगा है या रसूलुल्लाह लिखा हुआ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह लिखा हुआ झंडा। अब बरेली इलाके से गुजर जाएं, ट्रेन से गुजरें, दोनों तरफ देहात है और उन देहातों में हर घरों के ऊपर में झंडा लहराता है। वो झंडा लहराता आज से 25 साल पीछे आंख बंद करके जाए, कोई झंडा नहीं लहराता था और आज हर छतों पे झंडा लहरा रहा है। आज से 25 साल पहले किशनगंज शहर में जुलूस निकलता होगा, लेकिन लाखों की तादाद में, 50,000 की तादाद में लोग नहीं जाते थे, 1,000 गाड़ियां नहीं रहती थी। पूर्णिया शहर में जुलूस निकलता ही नहीं था 25 साल पहले। लेकिन आज उस शहर में जो हेड क्वार्टर है, जो अररिया पहले पूर्णिया में, किशनगंज पूर्णिया में, कटिहार पूर्णिया में, ये सारे जिले पूर्णिया में थे। पूर्णिया में हेड क्वार्टर है सीमांचल का, वहाँ जुलूस 25 साल पहले निकलता ही नहीं था, जुलूस मोहम्मदी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, लाख के करीब लोग निकलते हैं। ना और का पता है ना छोर का पता है, इतना लंबा जुलूस निकलता है। आज जो लोग पहले मदरसे के चंद बच्चों को देख के हंसते थे, क्या निकालने क्या जरूरत है, यानी जो एडवांस बनता है, जो अपने आप को मसनूई होशियार बनता है, बनावटी अक्लमंद, यानी कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर साहब है, बनावटी अक्लमंद। अब 10, 20, 50 बच्चे हैं, हाथ में झंडा लिया या रसूलुल्लाह के नक में गा करके जुलूस निकाल रहा है ना। अब उसमें ये हमारा ही बच्चा हंसता था, हिंदू लोगों को क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। वहाँ 10 आदमी का भी जुलूस निकलता है शहर में, 10,000 का जुलूस निकलता है शहर में, लेकिन इनके सीने में जो झूठा दर्द उठता था इंजीनियर
है साहब के सीने में। क्या है ये सब काम करने की क्या जरूरत है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुसलमान 100 आदमी निकल रहा है, यानी बच्चों का मजा। ऐसा करने की क्या जरूरत है, कोई ईद है क्या, बकरीद है क्या, ये ईद ये नई ईद कहाँ से आ गई। मसलूम जो सारी जिंदगी नमाज ठीक से पढ़ना न जानता, पाँव नमाज में रखना न जानता, जो कायदे से सूरह फातिहा की तिलावत न जानता हो, और वो साहब कितना आता है जैसा में कौन जाएगा, मौलाना मौली क्या जाने गया, वो 2-4 हजार महीना कमाता है, ये हमारा 4000 अल्लाह की कसम तुम्हारे 4 करोड़ से बेहतर है। जो झूठ ऑपरेशन करके 4 करोड़ कमाए, जो दलाली 2-4 तक से लेके ऑपरेशन करे और गरीबों की जमीन बेचवा के जो अपना आशियाना सजाए, उनके पैसों से ये पैसा बेहतर है। जो पैसा झूठ बोलकर नहीं, अल्लाह रसूल की बात बोलकर बतौर नजराना लोग हासिल करें। बाबा है आप जा रहे हैं अगले कैसे होगा, कैसे होगा बाबा, 1.25 घंटा हो गया, सलाम पढ़ना है। हाँ माशाअल्लाह, आज जो जुलूस निकल रहा है, आज जो अखाड़ा में, आज जो झंडा गड़ा हुआ है, आज जो ईद मिलादुल नबी का चर्चा हो रहा है, आज वही शहरी पूर्णिया है जहाँ अल्लाह के करीम लोग कटिहार साहब, हजारों गाड़ियां, आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो कल पूरा कहते थे, आज वह नेतागिरी करने के लिए आगे आके जुलूस के चलते हैं और झंडा लेके किल्ला लगा के चलते हैं। ये किसने ये माहौल बर्पा किया? 100 साल पहले रजा ने कहा था, खाक हो जाए तू चलकर मगर हमको रजा, हम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना जाएंगे, फरमाए तेरी शौकत का हम क्या जाने, खुश सदा अर्श पे उड़ता है तरेरा तेरा, जिक्र दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्कों की क्या मुरब्बत कीजिए। आला हज़रत ने जो पैगाम दिया था, वो पैगाम इस सदी में जवान हो चुका है और क़यामत तक जहाँ जहाँ ईद मिलादुन नबी का झंडा लहराएगा, ईद मिलादुन नबी लिखा जाएगा, ये सारा सेहरा आला हज़रत के सरे अक़दस में बांधा जाएगा। जिनकी तहरीक, जिनके मुक़द्दस मसलक ने समाज बदल दिया, लोगों को सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया, समाज का जोग्राफिया चेंज किया। अल्लाह ताला आला हजरत के इस कारनामे को सलामत रखे। उनका सबसे बड़ा पैगाम कि कुछ भाई बेटा पाक क्यों न रहे, जो रसूल का नहीं वो हमारा है, जो रसूल को सलाम नहीं करे वो उसके लिए हमारा कोई सलाम नहीं। ये सीधी सी बात मैंने एक हाजी इस्माइल को पटना जहानाबाद इलाके में बताया था, वो तबलीगी जमात में खूब जाता था, लेकिन जब वो सुना सच्चाई को जाना, चूंकि खमीर में सुन्नियत थी इसलिए वो बीच में बह गया था, फिर वापस आया, यू टर्न लिया और मसलक अज़हरिया से मुरीद हुआ। मैं खुद उनको बरेली शरीफ ले गया, वहाँ बैत करवाया और वहाँ से अब उनका पुराना तबलीगी जमात का साथी सब मिलता था, कहता था इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बोलता था ये आदमी, वो दलील कुरान हदीस नहीं देता था, वो बोलता था कि नहीं आपके सलाम का कोई जवाब नहीं। कहा इस्माइल भाई आप मेरे साथ में जमात में जाते थे और आज सलाम करते हैं, न सलाम करते हैं न सलाम का जवाब देते हैं। वो इस्माइल भाई साफ कहता था, जो हमारे नबी को सलाम ना करे उसके लिए कोई सलाम नहीं, जो हमारे नबी को सलाम ना भेजे उसके लिए हमारा कोई सलाम नहीं, न सलाम है न सलाम का जवाब है। इस मोटी सी बात अगर गिरह बांध के रख लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक वहाबी, नजदी, देवबंदी, तबलीगी नहीं होंगे, बल्कि यही बोलेंगे जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। अल्लाह ताला हम सबों को इश्क़ रसूल की नेमत नसीब फरमाए, इसी उसूल के साए में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुफ्ती शाकिर आदिल साहब को जिंदा रखे और लंबी उम्र अता फरमाए, इमाम साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि गाँव में इसी तरह के जलसे बार बार होते रहें। कम से कम साल में एक बार खुराक मिले जिसका असर साल के 360 दिन महसूस किए जाए इंशाअल्लाह। बोले अगले साल करेंगे ना फैजान आला कॉन्फ्रेंस, मैं जिंदा रहा तो मुझको बुलाइएगा, अगर मैं मर गया तो इंशाअल्लाह दूसरे को बुलाइएगा, मगर रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। जलसा हुआ अच्छा लगा नहीं लगा, जो लोग नहीं रहे उससे क्या शिकवा करना है,
چلا گیا اس میں کیا لگا ہوگا، بلکہ آپ اپنی تقدیر پہ ناز کیجئے کہ اللہ آپ کو گھر نہ جانے کی توفیق دیا اور یہاں رہ کر دین سیکھنے کی توفیق دیا۔ نگیٹو نہیں، وہ بھاگے بات نہیں، آپ ہی بھاگ جاتے، اللہ نے چاہا کہ تم بھاگو مت، بزرگوں کے فیضان کی بارش میں نہا جاؤ۔ تو اپنی اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے، نہ کہ دوسروں کا گلا شکوہ کر کے بیٹھ جائے، اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بیٹھ کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا کی۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، گاؤں کے ہر گھر میں رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، ہمارے علماء کرام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیں مرتے دم تک مسلک اہل سنت و جماعت کی استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا